Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to another video. I hope you all are doing fine and this is going to be a new series that we are starting on this channel. तो मैंने अभी कुछ टाइम के पहले एक get to know me video shoot किया था and the comments on it were so lovely कि मेरा मन हुआ that I should do more sit down videos and you guys agreed to it. तो मैंने सोचा कि month के end में we should do one video wherein I just sit and chat with you guys about everything that went on in that month ताकि मैं आप लोगों को एक अपडेट दे दूं, एक मंथली रिकैप कर लूं एंड आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी आंसर कर दूं. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोना डू इन टुडेज वीडियो. कम सिट विद मी, ग्रैब योर स्नैक्स, ग्रैब योर कॉफीज, ग्रैब योर चाइज, व्हाटएवर यू लाइक एंड लेट्स जस्ट टॉक एंड पोर आवर हार्ट्स आउट. मैं वीडियो में करती हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में करना एंड ऑल्सो गिव मी अ नेम फॉर दिस सीरीज इन द कमेंट बिलो. बट यस, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन जनवरी 2025. It was crazy to say the least, and towards the end of the video I will answer all the questions that you guys had in my community post and my previous video. So yes, if you're interested, keep on watching this video till the very end. But if you're new to my channel, take out a moment, hit that red subscribe button. Now without any further blabbering, let's just dive right into the video. First month of 2025 is almost ending and it is crazy, like time flies by. But बहुत ही ज़्यादा ironic situation ये है कि now that I think of it, it feels like January खत्म भी हो गया. But while January lasted, every single day it felt like, oh my god, how long. It is so ironic but it is very true. मतलब January is a month जो आपको एक एक दिन महसूस कराता है. And that is exactly what happened. But my January was crazy, like both goods and bads. So let's start from the starting. इस month को start मैंने travel से ही किया था. Like I went for my New Year's की trip. So इस month के starting के 2 दिन भी we were traveling only from Munsiari to Haldwani and then Haldwani to back home. So me and my brother came home before than my parents. I always like starting my year traveling ताकि मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है, मैं पहले दिन travel कर रही थी तो पूरे साल travel करूँगी. At least that is what I believe in. It was one of the best trips of my entire life. Not even my entire year but my entire life. Like it was such a beautiful place. इतनी सुंदर जगह थी. That place has my heart. The scenery, the landscape was so beautiful and that place was so calming. इससे पहले हम लोग usually जब भी न्यू ईयर्स की ट्रिप लेते थे तो we used to go to Himachal and Himachal is more of a party place as compared to Uttarakhand. Uttarakhand is all about the calm, the peace. Oh my god, it was so peaceful. That is exactly what I needed and I feel कि उस ट्रिप की वजह से ही I was able to start my 2025 on such a peaceful and positive note. The first news of New Year's was that my camera broke down. मैं सुबह उठी and मैं अंधेरे में ही उठ गई थी. So I wanted to shoot this time lapse of the sunrise क्योंकि वहाँ का sunrise ना बहुत ही beautiful हो रहा था and the view from my room was also very pretty. And the moment I took my camera and I flipped the screen, like I have the DJI Osmo Pocket 3, उसमें screen flip हो जाती है to shoot in the horizontal mode. and मैंने उस screen को flip किया, वो screen वापस आ जा रही थी and I was like what the hell just happened. मुझे समझ भी नहीं आया कि ये क्या हुआ, ये कैसे खराब हुआ, अब मैं इसको ठीक कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. and that camera has my heart. like I am so attached to that camera. वो पहले ही दिन साल के खराब हो गया. I just freaked out in that moment. But that is when I decided कि मुझे 2025 में this is something that I wanted to implement, that if something is not in my hands, I'm not gonna let it be in my head as well. अब उस situation में मैं उसके बारे में कुछ कर तो सकती नहीं थी. So I just closed it, I put it in my bag and I forgot about it. थोड़े टाइम तक तो मेरे को वो बॉदर कर रहा था. मैंने DJI सपोर्ट में भी बात करी बट द बेस्ट आई कुड डू आई डिड एंड देन आई जस्ट रिमूव्ड इट फ्रॉम माई हेड. एंड अभी की अपडेट ये है कि वो कैमरा जापान में है, वहाँ सर्विस सेंटर में. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई होप कि वो फिक्स हो जाए, अदरवाइज आई डोंट नो व्हाट आई विल डू बट I just really hope कि वो ठीक हो जाए. That happened and I managed to not be bothered about it as much जितना मैं पहले हो जाती. The first week of January was not very productive to be very honest. Second January को ही I got my periods the day I was back home and then 2-3 दिन तो मेरा फिर bed rest में ही निकल जाता है because मेरे cramps बहुत ही unbearable होते हैं and my body is just very low on energy. So मुझसे नहीं ज़्यादा move वगैरह किया जाता. So 2-3 दिन तो मैंने rest ही किया था and then the week ended only and there were certain things
2024 के एंड से ही जो मुझे बॉदर कर रही थी, आई टुक दोज इन 2025 स्टार्टिंग में। तो फिर वो हफ्ता वही सब चीज़ें सोचने में निकल गया। आई वॉज वेरी एंशियस, आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड आउट अबाउट सर्टेन थिंग्स। जो मंडे आया था, द फर्स्ट मंडे ऑफ जनवरी, दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड माई 2025। आई बॉट माई सेल्फ अ ब्यूटिफुल सनफ्लावर। फिर उसके बाद मैं अपना विजन बोर्ड बनाया। इस बार मैंने अपना विजन बोर्ड शेयर नहीं किया यूट्यूब पे, बिकॉज देर आर सर्टेन थिंग्स आई एम मैनिफेस्टिंग फॉर 2025 दैट आई वॉन्ट टू कीप सीक्रेट अभी के लिए। I don't want to, jinx it. So hopefully my vision board comes true this year as well. And ये सारी छोटे छोटे एक्टिविटीज करने से ना, you just get that positive boost of energy, and that is exactly what happened with me. उसके बाद मेरे को थोड़ा सा वो काम करने का जज्बा सा आ गया था, एंड जो भी नेगेटिविटीज थी मैंने उनको बिल्कुल साइड रख के आई स्टार्टेड फोकसिंग जस्ट प्योरली ऑन माई वर्क। जनवरी टचवुड हैज बीन वेरी प्रोडक्टिव कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि जनवरी यूजुअली ना मेरा प्लानिंग में ही निकल जाता था, बट इस बार मैंने डिसाइड किया है टू प्लान लेस एंड टू वर्क मोर। सो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने जनवरी में एक भी अपलोड मिस नहीं किया। आई हैव पोस्टेड 3 लॉन्ग वीडियोस एवरी वीक एंड अ शॉर्ट एवरी सिंगल डे। कई बार तो मैं 2-2 शॉर्ट्स भी पोस्ट कर दे रही हूँ एक दिन में। सो जनवरी हैज बीन वेरी प्रोडक्टिव वर्क वाइज। अपनी तरफ से तो आई हैव पुट इन अ लॉट ऑफ कंटेंट आउट देयर, एंड या मतलब वर्क वाइज मेरा महीना अच्छा जाए ना, तो बाकी मेरे लाइफ के एरियाज है ना, वो भी पॉजिटिवली ही अफेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज वर्क इज अ मेजर पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड दैट वेंट रियली वेल इन जनवरी। अभी मैं कोई चेंजेस नहीं कर रही हूँ रूटीन में। अभी आई विल स्टिल बी पोस्टिंग 3 वीडियोस पर वीक, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को शाम को 7 बजे, एंड शॉर्ट्स एवरी सिंगल डे शाम को 8 बजे। सो दैट इज गोइंग टू बी माई रूटीन। सो यू कैन सेट योर अलार्म्स एंड फाइंड मी ऑन यूट्यूब। पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो एवरी ईयर ना आई वॉन्ट टू क्लिक मोर फोटोज एंड वीडियोज अपनी अकेले की। लाइक आई रियली हैव सो लेस फोटोज ऑफ माई सेल्फ. Like I do click photos with other people, I click पिक्चर्स ऑफ अदर पीपल, बट अपनी अकेले की फोटोज ना मैं लेना ही भूल जाती हूँ. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई एम डूइंग दैट रीकैप थिंग, मेरे पास अपनी फोटो वीडियोज ही नहीं होती. दिस मंथ आई मेड श्योर दैट एवरी मोमेंट दैट आई वाज लिविंग आई वाज कैप्चरिंग इट. भले ही थोड़ा थोड़ा सा मैं कैप्चर कर रही थी, बट आई वाज कैप्चरिंग एवरी सिंगल थिंग बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू क्रिएट मोर मेमोरीज. ओके, नाउ समथिंग दैट जस्ट केम टू माई हेड वॉज दीज फ्यू कॉमेंट्स जो मेरी वीडियोज में आ रहे थे, जो मुझे ना एड्रेस करने थे. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसके लिए एक शॉर्ट्स बना के एड्रेस करूं, इंस्टा स्टोरीज पे करूं या कैसे करूं. वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियोज ऑन माय चैनल इज द सीरी चूजेस माय लिप कॉम्बो शॉर्ट्स. अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो वो सीरीज मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट करी थी. उसके मैंने काफी सारे पार्ट्स डाले, एंड वंस दैट सीरीज स्टार्टेड पिकिंग अप, मुझे उस पर इतना ज्यादा नेगेटिविटी देखने को मिला. मतलब मुझे अभी तक अपने चैनल पे इतने ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स नहीं देखने मिले थे, बट दोज 2-3 वीडियोज गॉट सो मेनी नेगेटिव कमेंट्स. पीपल वर सेइंग दैट आई कॉपीड सम अदर क्रिएटर. शी इज एन इंटरनेशनल क्रिएटर. Now there's a difference between copying and being inspired by someone. ये एक फॉरेन यूट्यूबर है, इनकी ये सीरीज थी वेरिन वो एक उनके पास डिवाइस है, जिस डिवाइस एंड एलेक्सा की हेल्प से वो लिपस्टिक कॉम्बोज बनाती थी. नाउ आई यूज्ड टू वॉच दोज वीडियोज ऑन लूप, एंड वहां से मेरे को आइडिया स्ट्राइक हुआ टू क्रिएट अ सिमिलर सीरीज ऑफ माई ओन. नाउ I decided to do this and it was an inspiration from her. Copying होता अगर मैं वही same device जाके खरीद लेती and I would have done the exact same thing, but it was not that. And the second thing is I never denied and I never said that it was my original idea, but there is nothing much that I can do about it क्योंकि मैं Insta की तरह YouTube पर tag नहीं कर सकती किसी को, and मैं नहीं आप लोगों को हर वीडियो में आके बता सकती कि ये वीडियो उनसे इंस्पायर्ड है, because this will again affect my watch टाइम. मुझे अपनी वीडियोस एकदम शॉर्ट और क्रिस्प रखनी होती है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग हियर इज इंस्पायर्ड बाय समथिंग और द अदर. हर दिन आपको हर किसी की हर एक वीडियो ओरिजिनल नहीं मिल सकती है. कोई ट्रेंड भी अगर चलता है, आप सबकी वीडियोस देख रहे हो सेम ट्रेंड पे, आप एंजॉय कर रहे हो, सो दैट डज नॉट मीन अ पर्सन इज कॉपिंग समवन एल्स. इट इज जस्ट दैट somebody started that trend and others got inspired to do it. So you need to understand the difference between copying and inspiring. Also there were so many comments on my honest review video saying कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है. I don't need to prove it here, but I have proofs that I decline brand collaborations when they want me to follow a script or when they want me to not tell the truth. I do decline the brand collabs, but अगर paid collab नहीं है वो, अगर वो एक sponsored video नहीं है,
फिर आपको क्यों लगता है कि मैं वीडियो में आके झूठ बोलूँगी? लाइक द ब्रांड इज़ नॉट पेइंग मी, आई एम मेकिंग दैट वीडियो विथ माय ओन मनी, आई बॉट द प्रोडक्ट विथ माय ओन मनी, आई एम शेयरिंग माय ऑनेस्ट ओपिनियंस विथ यू गाइज़। अब उसमें अगर आप आके ये बोल रहे हो दैट आई एम लाइंग अबाउट द प्रोडक्ट, दैट डज़ नॉट मेक एनी सेंस। लाइक प्लीज़ थिंक बिफोर सेइंग समथिंग। एंड सेकंडली दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई प्रोडक्ट है, मैं उसको रिव्यू कर रही हूँ, तो हो सकता है उस प्रोडक्ट का आपके लिए एक्सपीरियंस अलग रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम रिव्यूइंग सैलिसिलिक एसिड सीरम, ठीक है, आई हैव एन एक्सट्रीमली ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। अब सैलिसिलिक एसिड सीरम मेरी स्किन पे जिस तरीके से काम करेगा, उस तरीके से एक ड्राई स्किन के ऊपर नहीं काम करेगा। नाउ इफ अ ड्राई स्किन पर्सन यूज दैट सीरम एंड दे कम अप सेइंग दैट इन्होंने तो झूठ बोला, हमारी स्किन पे तो ऐसे ऐसे हो गया, इसके ऑब्वियसली होगा ना, माई स्किन इज डिफरेंट, योर स्किन इज डिफरेंट, so that is something that you need to understand. So before leaving such hateful and such rubbish comments, like it could be said in a positive tone also. I reply to every single comment. I would tell you guys my opinion, my personal take on it, but सीधा आके बोल देना कि अरे ये तो झूठ बोल रही है, ये तो झूठ बोल रही है। अरे मैं ऑर्गेनिक वीडियो में क्यों झूठ बोलूंगी, ये खुद भी सोचो ना। मैं तो पेड वीडियोस में भी झूठ नहीं बोलती। आई डोंट हैव टू स्टे हियर फॉर 1 week or 1 day. I have to stay here for longer, and that is only possible if I'm able to build a trustworthy community, and if I'm able to gain you guys' trust, and that is something I strongly believe in. So just have a little bit of faith, and please stop spreading hate in people's comment boxes. Other than that, something that happened in January जो कि बहुत long overdue था, was that I took my first therapy session in January. अब भी I think एक हफ्ता ही हुआ है उस चीज को भी. It did not go as I planned. ठीक है, मुझे ऐसा लगा था कि दिस इज समथिंग आई रियली नीड, एंड मैं बहुत टाइम से इसको डिले कर रही थी, बट देन आई फाइनली डिसाइडेड टू टेक माई फर्स्ट सेशन. आई वॉज नॉट एबल टू टॉक, लाइक आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, मैं रैंडम स्ट्रेंजर्स से भी ओपन अप हो सकती हूँ इफ दे मेक मी फील कंफर्टेबल. And I've realized that over the time that is not really the case anymore with me, because when I was talking to her, I wanted to talk to her, but I was not able to. तो वो भी मेरे को बार बार यही बोल रही थी कि यार आप ना बहुत ज़्यादा जेनेरिक टर्म्स में मुझे बातें बता रहे हो, यू आर नॉट टेलिंग मी स्पेसिफिक थिंग्स दैट हैपन टू यू. तो मैं फिगर आउट नहीं कर पाऊंगी कि व्हाट ट्रिगर्स यू, व्हाट ट्रिगर्स योर एंग्जाइटी, एंड आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू. एंड नाउ फ्रॉम माई इनसाइड आई वॉज trying my best to speak up, but I was not able to, and that is when I figured out that maybe therapy is not for me, at least not right now. I'm not in that state to, you know, sit down and talk about my life in general with any random stranger. Like I was this person long back, but अब मुझसे नहीं होता. So I think I'll just delay and postpone ये therapy sessions अब बात के लिए. कभी अगर मुझे ऐसा लगता है that I'm mentally ready to share things with someone and to, you know, dig deep and figure out things, तब मैं हो सकता है आगे चल के कभी इसको रिकंसिडर करूँ. बट फॉर नाउ आई डोंट थिंक इट इज फॉर मी. आई एम नॉट मेंटली इन दैट zone right now to discuss my life with someone. So that happened, but I'm happy that I took the first step. Also, makeup and hair wise, I created so many looks in January. पिछले पूरे साल मैं सोचती रह गई थी that I will do creative looks, colorful looks, but I used to just do wearable everyday looks and it just got very monotonous and boring. मुझे पता है कि आप लोगों के लिए भी हो गया होगा जब मेरे लिए ही हो गया था. तो इस साल मैंने सोचा था कि प्लान नहीं करना है. एवरी डे व्हेन आई सिट विद माय मेकअप, I am going to create something crazy. And yeah, I did this look, then I did this look, then I did this look, and I was so impressed. I loved creating these looks. मैं पहले करती थी ये, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पे I used to do so many colorful looks. I used to experiment with my hair, but then 2023 and 2024 में I just got very comfortable and very boring. मुझे खुद ही बोर होने लग गया था. So 2025 is not going to be that. I am experimenting with my looks, my hair, my makeup, everything, and there is going to be a lot of crazy content coming your way. Some more things that I started in January 2025 were yoga. I am a gym person mostly. Like I really like weight training. ठीक है, मुझे कार्डियो बिल्कुल पसंद नहीं है. मुझे मौत आ जाती है कार्डियो करने में. I used to do gym regularly for 2 years. उसके बाद मैंने छोड़ दिया था. फिर 2 साल तक तो मैंने एक्सरसाइज के नाम पे कुछ किया ही नहीं. I was just working and doing nothing else. उसकी वजह से मेरी फिजिकल हेल्थ काफी ज्यादा इफेक्ट हो गई थी in 2024. फर्स्ट हाफ आई वॉज एट माई हेवीएस्ट, एंड काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज भी होने लग गए थे, एंड उसके वजह से एक्ने ट्रिगर हो जा रहे थे. माई पीरियड साइकिल वॉज नॉट यू नो सिंकिंग, एकदम सब इधर उधर हो गया था. सो देन
then 2024 के second half में I decided to improve my diet, and then 2025 में I wanted to start some form of physical exercise. Now gym was not possible क्योंकि मेरे को ना अकेले जिम जाने नहीं होता, and my brothers and my timings don't align. उसका अपना काम चलता रहता है, मेरा अपना काम चलता रहता है. I don't have friends here, so gym was not an option. So I decided to join yoga, because yoga is not only beneficial for your physical health and your flexibility, is also helpful for your mental health. So मैंने अभी योगा क्लासेस ज्वाइन करी है, एंड वहाँ पे भी समथिंग सो फनी हैपेंड. आई थॉट कि मैं योगा ज्वाइन करूंगी. इट विल बी दिस वेरी क्यूट इंटरेस्टी योगा स्टूडियो, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्यूट क्यूट गर्लीज देयर, एंड उनके साथ में योगा कर रही होगी, बीइंग ऑल एस्थेटिक एंड एवरीथिंग. दोस क्यूट योगा स्टूडियोज वो मेरे घर से ना काफी दूर थे, ठीक है. तो अगर मेरे को वो ज्वाइन करने रहते, सो मेरे को टाइमिंग इस तरीके से फिक्स करना पड़ता कि मुझे उधर आने जाने को दिक्कत नहीं होती. बट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन अ क्लास अर्ली इन द मॉर्निंग, लाइक 5 AM या 6 AM, ताकि मैं एक मॉर्निंग पर्सन बन पाऊँ, एंड क्लास होगी तो मैं जा भी पाऊंगी. सो देन देयर इज दिस पर्सन इन माई सोसाइटी हु टीचेज योगा, एंड आई यूज्ड टू डू योगा विद हिम काफी साल पहले. सो ही हैज स्टार्टेड हिज ओन सेंटर, सो आई डिसाइडेड टू ज्वाइन हिम ओनली बिकॉज ही इज वेरी गुड एट हिज वर्क, ठीक है. देन आई डिसाइडेड टू ज्वाइन हिज सेंटर, and 6 AM in the morning, the first day I went for yoga, including the teacher. There were five more men there, and I was the only girl there, and I was like, oh my god, what happened to my Pinteresty dream? इट वॉज सो फनी, एंड मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, हम इतना हंसे हैं कि इट वॉज सो फनी. बट देन ठीक है, आई फील कि फॉर नाउ आई एम गोइंग टू स्टिक टू दैट, बिकॉज ही इज अ गुड टीचर, एंड आई एम बीइंग एबल टू बिकम अ मॉर्निंग पर्सन बिकॉज ऑफ दैट. मैं सुबह सुबह उठ के सीधे क्लास चली जाती हूँ. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इन द मॉर्निंग, एंड उसके वजह से मेरा पूरे दिन का रूटीन काफी अच्छा फिक्स हो गया है. We do yoga there, we do meditation, and that has been helping me both externally and internally. Also, I have started a 30-minute walk after dinner. That is also very, very helpful. Also, I have started keeping my phone away 30 minutes before I sleep, and उसकी वजह से इतना फर्क पड़ता है ना. लाइक ऑल यू गाइज, मुझे पता है कि हम सब ऐसा इंसोम्निया के शिकार हो गए थे कि नींद ही नहीं आती थी ना लेट नाइट तक. लाइक आई एम अ पर्सन, मैं 2 घंटे की नींद पे सर्वाइव कर जाती थी बहुत आराम से. मुझे सोना ही नहीं पसंद था, बट देन दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड इट इन माई सेल्फ. सो दिस ईयर्स गोल वॉज टू फिक्स ऑल ऑफ दैट. आई गो ऑफ टू स्लीप बाई 11 PM. तो 10:30 बजे मैं अपना फोन साइलेंट करके रख देती हूँ, अलार्म वगैरह लगा के उसको हटा देती हूँ अपनी नजरों के सामने से, एंड देन आई स्टार्ट रीडिंग अ बुक. सो 30 minutes आई रीड अ बुक, एंड देन आई गो ऑफ टू स्लीप. इतनी अच्छी नींद आती है, इतनी जल्दी नींद आ जाती है. टू ट्राई दैट आउट एंड टेल मी इफ दैट वर्क्स फॉर यू और नॉट, बट दैट हैज बीन वर्किंग रियली ग्रेट फॉर मी. So physically, mentally, I am doing a lot better because of all of these lifestyle changes that I made. And now I can say that I'm a morning person and not a night owl anymore. Like I wake up early, I sleep on time, I don't sleep दिन में, तो उसकी वजह से मेरा sleep schedule भी एकदम fix हो गया है. जनवरी में मैंने बहुत ज़्यादा कुक किया है. मेरा कुकिंग से ना काफ़ी ज़्यादा टच छूट गया था पिछले कुछ सालों में because of all the work again. But this year I really wanted to balance my work and life. So I have been cooking a lot. Like dinner में तो usually we have salads only. So I'm experimenting with a lot of different salads. मैंने अभी एक trying healthy salad recipe का वीडियो भी किया था. So you can watch that. It was a very fun video. And I'm planning to do more cooking related content. So let me know in the comments कि आपको और कौन कौन सा content देखने में मजा आएगा. Other than that, I started reading भगवद गीता again. मैं पिछले 2 साल से start कर रही हूँ. 2023 में भी मैंने start किया था. उस साल तो मैं 10-15 पन्ने के आगे बढ़ ही नहीं पाई थी because मैं हिंदी में start किया था मैंने, and मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा था. It is such a टफ लैंग्वेज, ओ माई गॉड. हिंदी हम बोलते हैं इतना आसान लगती है, बट पढ़ने को नहीं हो रहा था, एंड इट वाज लाइक वेरी शुद्ध हिंदी. तो आधे शब्दों का तो मुझे मतलब ही नहीं समझ में आ रहा था. सो देन 2024 में माई फ्रेंड गिफ्टेड मी भगवद गीता एज इट इज़ इन इंग्लिश. सो 2024 में मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, बट देन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर आई जस्ट लॉस्ट टच, एंड फिर वो प्रोक्रेस्टिनेट ही होता रह गया कि अब स्टार्ट करूंगी 2025 में फाइनली मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, एंड इट हैज बीन गोइंग रियली स्ट्रॉन्ग. एवरी सिंगल मॉर्निंग आफ्टर आई प्रे आई सिट विद माई भगवद गीता, एंड बिफोर ईटिंग एनीथिंग आई रीड 10 pages. इट इज रियली गुड. लाइक इट हैज सो मेनी लेसन्स इन देयर, इट हैज सो मेनी आंसर्स टू द व्हाई एंड हु वाला क्वेश्चंस जो हमें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं ना एकदम से, उसके आंसर्स हैं यार उस बुक में. दैट बुक इज रियली अमेजिंग. अनदर बुक दैट आई रेड दिस मंथ इज एटॉमिक हैबिट्स. अभी मेरी
पूरी फिनिश नहीं हुई है, थोड़ी-सी बची है, बट देन दैट बुक इज़ ऑल्सो रियली अमेजिंग। उसके मैंने इतने सारे अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ पढ़े थे एंड नाउ आई नो व्हाई पीपल प्रेज़ दैट बुक सो मच। इट इज़ सच अ गुड बुक। इट इज़ नॉट जस्ट समथिंग दैट यू वांट टू रीड, इट इज़ समथिंग दैट यू वांट टू इम्प्लीमेंट, एंड अगर आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाते हो ना, वो आपको आपके हैबिट्स वगैरह चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद procrastination, not able to pick up good habits and being stuck to bad ones, you have to read that book. वो book हिंदी में भी आती है and my mom is reading the Hindi version of that book and even she is hooked on to that book. So yeah, I think it is really amazing and you should definitely give it a try. I got very deep into spirituality and January has been really good that ways, and I think that is something that has really helped me get out of some worries that were really bothering me. I've made it a fact कि मैं हर सुबह उठ के I pray every single morning. Like I used to do it earlier also, but जब मेरा मन होता था या मैं टाइम से उठ जाती थी तो मैं करती थी. But now I have made it a routine that I have to do this no matter work. जिस तरीके से I treat my work that it is a compulsion and a necessity, not an option. उसी तरीके से I have been taking my spirituality and my religion also. I have been feeling connected to God a lot more than before, and that is such a good feeling that I cannot express it in words. Talking about the movies, the series that I have been watching this month, मैं थिएटर में मूवी देखने गई थी फतेह, ठीक है. So my brother heard some good reviews about that movie and we went to watch that movie. That movie was so bad, like it was a remake of The Equalizer, ठीक है. वो one of my favorite movies है, अगर आपने नहीं देखी ना उसको एक बार देखो. And then watch फतेह. It was a remake, like they did every single thing same to same, and it was so bad. Like I was so unhappy कि ये इक्वलाइजर का इन्होंने क्यों बनाया यार. मतलब व्हेन देयर इज समथिंग सो गुड, व्हाई डू यू हैव टू ruin it by making such bad remakes. या तो आप उसको अच्छा ही बनाते हो. उसमें कुछ अच्छा नहीं था उस मूवी में. दैट वाज द सेकंड टाइम कि मैं मूवी थिएटर में से ना मिड सेशन के बाद वापस आ गई. फर्स्ट वीक में ही मैंने कुछ मूवीज देखी थी. आई विल अटैच देम हियर, बट ऑल वर्ड लाइक रोम कॉम्स, एकदम ही रोमांटिक मूवीज देखना मेरे को पसंद है. सो वो मैंने देखी थी, बट उसके बाद मैंने मूवीज वगैरह देखी नहीं इस मंथ ज्यादा. I have been watching The Vampire Diaries again for the, I think, 6th or the 7th time. I am obsessed with that series. It is such a good series and मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. So I have started rewatching it. So उसकी वजह से ना मेरे को बहुत ज़्यादा concentration से नहीं देखना पड़ता, because I know कि क्या होने वाला है आगे. So even if मैं half mindedly देख रही हूँ उसको, तो मेरे को उतना ज़्यादा problem नहीं होती. Otherwise I have to be very fixed and concentrated when I start a new series. इसलिए मैंने कुछ नया start नहीं किया. I've just been watching TVD. I have been very intrigued to go to Mahakumbh. पता नहीं क्यों अंदर से getting this calling कि मेरे को जाना है. I've told my family that I really want to, like I'm manifesting that. I don't know when that would happen, if that would happen or not, but let's hope for the best. I am really wanting to visit there, but बहुत ही ज़्यादा crowded है, मतलब parents का अपना concern है, but let's see what happens. But then that thing is in my head, like I really want to visit it. Now I've been filming for my birthday series. वो भी मैंने start कर दिया है, because February में मैं अपनी birthday series post करूँगी इस साल. So I will be posting 12 videos every single day, like 12 long videos, and shorts तो रोज आएंगे ही जैसे पहले आते थे. फिर 13th February से जो हमारा नॉर्मल TTS वाला स्केड्यूल है, हम उस पर स्टिक करेंगे. सो अभी वही चल रहा है. नाउ आई विल स्टार्ट टेकिंग योर क्वेश्चंस. जो मुझे क्वेश्चंस आए थे, इसमें जो भी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के या स्किन केयर मेकअप रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, वो मैं आज नहीं लूंगी. तो समबडी आस्क्ड, आप ब्रांड से अप्रोक्सीमेटली कितना चार्ज करते हो? तो यार देखो, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए वो बिल्कुल ही अलग है, बिकॉज मेरे फॉलोअर्स दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे बिल्कुल अलग है. इट डिपेंड्स अपॉन द एंगेजमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द व्यूज. मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती कि मैं इतना चार्ज करती हूँ, क्योंकि हर ब्रांड के लिए वो सेम नहीं होता है. एंड यू हैव टू चार्ज अकॉर्डिंग टू द ब्रांड्स कैपेसिटी. फिर बहुत ज्यादा नेगोशिएशन भी होता है. आई हैवंट बीन डूइंग अ लॉट ऑफ पेड कोलैब्स, क्योंकि अभी उतना ज्यादा मेरा एंगेजमेंट रेट नहीं हाई हुआ है. सो आई हैव बीन ट्राइंग टू फोकस ऑन माई कॉन्टेंट राइट नाउ. बट इफ यू वांट मी टू डू अ वीडियो ऑन इट, I can do a video on it, and I could tell you guys how can you pitch to a brand and how can you get paid collaborations and आपको कितना charge करना चाहिए. About my relationship status, if I have a boyfriend or not, it is nothing guys, it is nothing. I've been single for so long, like it has been a part of my identity by now, but ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा है लाइफ में बताने के लिए, वरना मैंने पक्का किसी ना किसी अपडेट वीडियो में हिंट तो दे ही दिया था आप लोगों को. I'm not a person who does casual, I'm not a person who gets into things just for fun. So I prefer being single rather than not being sure about someone. Questions about my age.
सो आई एम 24, आई एम टर्निंग 25 दिस ईयर, और 12th February मेरा बर्थडे है, उसमें मैं 25 टर्न हो जाऊंगी. दैट इज क्रेजी. It is still not sinking in. When are you getting married? Okay, when am I getting married? I don't have a guy to get married to. That is the only problem. The moment I get a guy who matches my expectations, thoda bahut bhi, I'll get married. I can't tell you when because abhi to dur dur tak koi chance nahi hai, because there's no guy in my vicinity also jisko main consider kar saku abhi. It will happen when it is meant to happen. So can't really say much about that. Let's see, जब भी होगा मैं आप लोगों को बता ही दूंगी. जो भी क्वेश्चंस मैं यूट्यूब जर्नी को लेके आ रहे हैं, वो मैंने जो गेट टू नो में वीडियो किया था वो लिंक कर दूंगी, आप लोग उसमें चेकआउट कर सकते हो. सब कुछ आंसर उधर ही किया था. व्हाट आर माय फ्यूचर गोल्स? सो फ्यूचर गोल्स यार अभी फिलहाल 2025 के लिए तो यही है कि आई रियली वांट टू पुट आउट इंटरेस्टिंग कंटेंट फॉर यू गाइस, बी कंसिस्टेंट एंड ग्रो दिस चैनल. टचवुड वी हैव बीन डूइंग अ लॉट बेटर देन लास्ट ईयर, बट अभी भी आई एम नॉट वेरी सैटिस्फाइड विद एवरीथिंग. ठीक है, तो वो चीज मेरे को इंक्रीज करनी है. आई वांट टू रियली वर्क ऑन दिस चैनल. Other than that, there is another thing in the pipeline for this year. होपफुली वो हो जाए इस साल ही, पर वो मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ. इफ यू गेट अ चांस टू ट्रैवल, विच कंट्री यू वुड वांट टू विजिट? इट वुड हैव टू बी अ यूरोपियन कंट्री, बिकॉज आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद यूरोपियन आर्किटेक्चर एंड एवरीथिंग. लाइक मुझे यूरोप ना बहुत ज्यादा इंट्रीग करता है. सो इफ वन कंट्री आई वुड हैव टू विजिट राइट नाउ, आई वुड डेफिनेटली गो टू स्विट्जरलैंड. दैट कंट्री is at the top of my bucket list, and I really wish that I get the chance soon. And then there is a very sweet comment and a question. Being a girl is so tough. By the grace of Almighty, we manage to do anything and everything. Let's keep aside that you're a content creator. How do you manage ordering things like makeup, skincare stuff and tell mom that this is to create a video, but actually you buy things to use for yourself? Hence, girls love makeup stuff. Do you lie like this, or actually you purchase things only for the video purpose? And I really enjoy yoga. Yeah, thank you so very much that you enjoy my content. Usually तो ऐसा ही होता है कि मैं अपने वीडियोस के लिए ही प्रोडक्ट्स खरीद रही होती हूँ, बिकॉज इस टाइम पे ना मेरे पास ये पूरा ड्रॉर भर के मेकअप है, एंड आई डोंट रियली नीड एनी मोर मेकअप. एंड अभी मैं कोई भी अगर नया प्रोडक्ट खरीदती हूँ तो इट इज यूजुअली बिकॉज ऑफ द वीडियोज ओनली. एंड इवन इफ इट इज नॉट, अगर मैं वीडियोज के लिए नहीं ले रही हूँ एंड अपने लिए भी ले रही हूँ, तो आई डोंट रियली हैव टू कन्विंस माई फैमिली, क्योंकि उतना कोई कुछ बोलता नहीं है. आई अर्न माई ओन मनी, आई स्पेंड माई ओन मनी, उतना ज़्यादा कोई पूछताछ करता नहीं है. बीच बीच में जब ज़्यादा पार्सल्स आने लग जाते हैं तो मम्मी डांट ज़रूर देती है कि इतने सारे क्यों मंगा रही है, इतनी तो तुझे ज़रूरत भी नहीं है. बट देन व्हेन आई टेल हर दैट इट इज़ अ लिपस्टिक, तो सबसे पहले डब्बा खोल के वही चुरा के ले जाती हूँ, तो उतना ज़्यादा कुछ ऐसा इशू होता नहीं है. योर फेवरेट कॉन्टेंट क्रिएटर? या एट दिस पॉइंट आई डोंट नो, क्योंकि मैंने यूट्यूब ना बहुत ही कंज्यूम करना कम कर दिया है. सो आई डोंट नो हु माई फेवरेट क्रिएटर इज एनी मोर. आई एम नॉट एबल टू रिलेट टू एनी वन अभी currently. Your favorite place and favorite food? My favorite place is Bangla Sahib. That is my sukoon ghar, to say the least. Like whenever I'm feeling anxious, whenever I'm stressed about something, whenever I'm not able to take things anymore, I just visit that place. I sit there for half an hour, 1 hour, and everything is all roses and glitters again. So that is my favorite place. And favorite food, I'm a foodie. I love to eat. I like to try new cuisine. I don't have one favorite food. I love every single thing that is tasty. How many members in my family? 4. Me, mother, father, brother, younger brother. I feel these were all the questions that I had right now. इस मतलब काफ़ी सारे और भी questions हैं, but all of those are related to YouTube only. मैं वो इस वीडियो में नहीं डिस्कस करना चाहती थी, because I discussed it in my previous video. फिर बहुत ज़्यादा repetitive हो जाता. But then if you want me to talk about my YouTube journey in proper detail, in a detailed video, let me know in the comments. I will make a separate video about it. But ये वीडियो already बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है. Keep dropping your questions and tell me how your January 2025 was. आपने क्या क्या नया शुरू किया, किस तरीके से आपका ये महीना गया, मुझे सब कुछ नीचे जरूर बताना. एंड ऑल्सो टेल मी इफ यू शुड मेक दिस अ सीरीज एवरी सिंगल मंथ. आई रियली हैड फन फिल्मिंग दिस वीडियो. आई होप you liked it too. If so, like, share, comment and subscribe to the channel. I shall see you super soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.